Hello students, in the last video we have discussed how to find out the square of the given number. Today I am going to discuss or today I am going to explain in front of you. The name of the point is Pythagorean triplet. I think you will learn about the Pythagoras theorem. This Pythagorean triplet is also totally depend on that theorem only. Theorem means what? In that theorem you will learn about it. Hypotenuse square is equal to sum of squares of remaining two sides. Means generally we are saying hypotenuse square is equal to first side square plus second side square. Are you getting? Here also we are going to do like that way. In this Pythagorean triplet, what we are going to discuss, look here. Here we will get three numbers, any three numbers. Otherwise we can say here we can consider any three numbers. And suppose we are getting greater number, यानी कि bigger number square is equal to sum of squares of remaining two numbers. Sum of square of remaining two numbers, then we can say those three numbers are Pythagorean triplet. And if we are not getting like that, then we can say it is not a Pythagorean triplet. Okay, let me explain what is meant by Pythagorean triplet. Explain by using some examples. Now I am going to start. Listen here carefully. Okay, look here. Let us consider, suppose we have considered here numbers 3, 4 and 5. Suppose we have considered here number 3, 4 and 5. As I told you, this concept, Pythagorean triplet concept, belongs to the or depend on the Pythagoras theorem. Okay, means in that Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to sum of squares of remaining two sides. Here also, here we are not going to take hypotenuse. Here we are going to select the bigger number. From these 3, 4 and 5, which is the bigger number? Obviously 5 is the bigger number. Means first of all we have to consider the bigger number, means 5, and we have to do its square, means like that. Look here. Here 5 square is equal to 25. Got idea what I did? Look here. Here what I did? Here bigger number which one? 5. Its square is what? 25. I said it is equation first. Now I will consider remaining two numbers. Then which is remaining two numbers? 3 and 4. Its square also we have to do. 3 square plus 4 square. What is 3 square? 9. 4 square 16 is equal to what? 25. इसको हम बोलेंगे equation number 2. Now you see carefully equation 1 and 2. Here is also 25, here is also 25. Means we can say from equation first and second we get, what do we get? 5 square is equal to 3 square plus 4 square. 5 square is equal to 3 square plus 4 square. Means what we got? 25 is equal to 25. 25 is equal to 25. What it shows? It shows that 5 square is equal to 3 square plus 4 square. Means LHS is equal to RHS also we can say. Okay. Here we got greater number square. Look here. Here we got greater number square is equal to sum, means addition, sum of squares of remaining two numbers, and that is 25 is equal to 25. Here hence we can say, hence 3, 4 and 5 is a what? Pythagorean ट्रिपलेट. समझे? सिंपल सी बात है. अगर इक्वल आ रहा है यानी कि ग्रेटर नंबर का स्क्वायर जो आता है वो अगर दोनों नंबर के स्क्वायर का एडिशन करने के बाद वही आंसर आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ओके, और एक एग्जांपल देता हूं. देखो, समझो मैंने एग्जांपल लिया 6, 8 एंड 9. ओके, कौन सा एग्जांपल लिया हमने अभी? 6, 8 एंड 9. तो अभी स्टार्ट करेंगे. ग्रेटर नंबर कौन सा है? 6, 8 और 9 में से 9 है. तो हियर 9 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है? 81. ओके, नेक्स्ट रिमेनिंग एंड 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64. कितना आंसर आया? 100. ओके, अभी देखो इधर, समझे क्या हुआ? देखो 81 एंड 100. इधर देखो 81 और 100 इक्वल है क्या? नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे?
from 1 and 2, we get, what we got? 9 square is not equal to which one? 6 square plus 8 square. समझे? 9 square is not equal to 6 square plus 8 square. ओके, यानी कि 81 इज नॉट इक्वल टू 100. अब ये लिखने की, नेक्स्ट स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है. 9 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. देयरफॉर 6, 8 and 9 is not a Pythagorean ट्रिपलेट. समझे? गॉट आइडिया? अगर इक्वल आ रहा है तो ट्रिपलेट बोलो, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो नहीं ट्रिपलेट. अंडरस्टूड? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? आई हैव एक्सप्लेन हियर which one Pythagorean triplet means what. Okay, next regarding to this only, and that point I am going to show you now. Look here, instruction will be like that. Instruction ऐसी दी जाती है, write the Pythagorean triplet whose smallest member, ये भी word use किया जाता है, whose smallest member, और oblique करके लिखा है मैंने number. इन दोनों में से कौन सा भी एक word इधर होगा. राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8, ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है, राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8. हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, यानी कि एक नंबर हमें अभी दिया है तो दो नंबर बाकी के हमें फाइंड आउट करने हैं. इसका मतलब है ये. ओके, आई एम गोइंग टू शो यू. लुक हाउ टू स्टार्ट दिस. लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. बहुत ही सिंपल है, समझने की कोशिश करो. सॉल्यूशन एंड गिवन. What is given? Here the smallest number is, here the smallest number is, what is 8. ये हमें कैसे मिला? देखो इधर एग्जाम्पल में वही दिया है, वो हमने कॉपी किया. स्मॉलेस्ट नंबर और मेंबर, कौन सा भी वर्ड यूज करो, इज व्हाट? 8. ओके, हियर द स्मॉलेस्ट नंबर इज और स्मॉलेस्ट मेंबर इज व्हाट? 8. तो रिमेनिंग हमें फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखो अभी. ओके, देयरफॉर हमें इधर एक फॉर्मूला यूज करना है. सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो 2m. क्या फॉर्मूला है? 2m इज इक्वल टू दिया हुआ नंबर लिखना है. क्या करना है? देखो 2m इज इक्वल टू दिया हुआ हमें नंबर लिखना है. एंड हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m. कैसे? m इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2. देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या आया? 4. 2 1s are 2, 2 4s are 8. गॉट आइडिया? अंडरस्टूड? ओके, देन पहला नंबर ऐसे फाइंड आउट करना है, m स्क्वेयर माइनस 1. ओके, व्हाट इज m स्क्वेयर? 4. 4 स्क्वेयर माइनस 1, यानी कि 4 स्क्वेयर कितना आता है? 16 माइनस 1, यानी कि कितना हुआ? 15. एंड m स्क्वेयर प्लस 1, यानी कि 4 स्क्वेयर प्लस 1. Got idea what I did? Simply I kept the value. m की जगह जो वैल्यू मिली है वो लिखी, 16 प्लस 1, यानी कि कितना आया? 17. ओके, तो फाइनल में आंसर हमें लिखना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज. पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज. ओके, कैसे लिखना है? देखो दिया हुआ नंबर, पहले कौन सा नंबर दिया है हमें? 8 दिया है, तो इधर लिखना है 8. हमें पहला नंबर हमने कौन सा फाइंड आउट किया? 15, तो इधर लिखना है 15. और तीसरा नंबर हमने फाइंड आउट किया 17, तो इधर लिखना है 17. गॉट आइडिया? कैसे किया, समझ में आया? पहला नंबर देखो, हियर द स्मॉलेस्ट नंबर इज, पहला नंबर दिया हुआ एज इट इज कॉपी करना है. सिंपल यही फॉर्मूला यूज करना है. 2m इज इक्वल टू दिया हुआ नंबर लिखना है, कौन सा भी नंबर हो सकता है. ओके, अभी बहुत सारे स्टूडेंट के यही मन में ये भी डाउट आ सकता है, डिवाइड नहीं हुआ तो ऐसा नंबर जनरली नहीं देंगे, डिवाइड होगा ऐसा नंबर इधर दिया जाएगा. ओके, तो m की वैल्यू हमें मिल गई. तो पहले नंबर फाइंड आउट करने के लिए m स्क्वेयर माइनस 1, दूसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए m स्क्वेयर प्लस 1 फार्मूला यूज करना है. और दिया हुआ नंबर 8, बाद में दो नंबर जो हमने फाइंड आउट किए 8, 15 एंड 17 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. समझे? और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, देखो इधर तुम्हें समझ में आएगा अच्छी तरह से. इधर देखो, सॉल्यूशन एंड गिवन. Write the Pythagorean triplet whose smallest number is 12.
तो हम क्या लिखेंगे पहले, स्मॉलेस्ट नंबर इज 12, स्मॉलेस्ट नंबर इज व्हाट, 12। अंडरस्टूड। तो पहला नंबर फाइंड आउट के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया, एम स्क्वेयर माइनस 1, और दूसरे नंबर के लिए एम स्क्वेयर प्लस 1। तो पहला नंबर लिखो इधर, एम स्क्वेयर माइनस 1, ओ सॉरी, पहले हम क्या करना है, एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, पहले हमें क्या करना है, एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, इधर मैं डायरेक्ट दिखा रहा था, हम इधर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखो, ओके, डायरेक्ट यानी कि कंपेयर करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसीलिए फिर से मैं दिखा देता हूँ। ओके, पहले हमें इधर क्या करना है, एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे लिखेंगे, 2m इज इक्वल टू, दिया हुआ नंबर कौन सा है, 12। अंडरस्टूड, गॉट आइडिया व्हाट आई डिड। ओके, पहली स्टेप हमारी क्या होती है, स्मॉलेस्ट नंबर दिया है वो कॉपी करना है। तो ये फॉर्मूला लिखना है, 2m इज इक्वल टू 12। अभी m की वैल्यू फाइंड आउट करो, 12 डिवाइडेड बाय 2, तो m इज इक्वल टू कितना आएगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 6 जार, मीन्स वी गॉट हियर m इज इक्वल टू व्हाट, 6। ओके, देन फर्स्ट नंबर के लिए फॉर्मूला हमें कौन सा है, m स्क्वेयर माइनस 1। ओके, m की वैल्यू कितनी हमें मिली, 6, 6 स्क्वेयर माइनस 1, 6 स्क्वेयर कितना होता है, 36 माइनस 1 यानी कि 35, 36 माइनस 1 35। दूसरा नंबर m स्क्वेयर प्लस 1, 6 स्क्वेयर प्लस 1, 36 प्लस 1 यानी कि 37। ओके, गॉट आइडिया। तो डायरेक्ट लिखोगे ऐसा भी चलता है, ट्रिपलेट इज व्हाट इज ट्रिपलेट, दिया हुआ नंबर कौन सा है, 12, बाद में हमने फाइंड आउट किया 35, बाद में 37, 12 35 एंड 37। अंडरस्टूड, गॉट आइडिया, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, ये देखो आज के लेक्चर में मैंने तुमको क्या बताया, आई हैव स्टार्टेड द न्यू पॉइंट, द नेम ऑफ द पॉइंट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, 3 नंबर्स कौन से भी हमें कंसिडर करने हैं, उसमें अगर क्या हो रहा है, बिगर नंबर और ग्रेटर नंबर का स्क्वायर जो है उसके जैसा उतना ही रिमेनिंग 2 नंबर का स्क्वायर करके सम करके जो आंसर आता है, अगर उतना आ रहा है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं, व्हाट वी कैन से, ग्रेटर नंबर स्क्वायर और बिगर नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू सम यानी कि एडिशन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स, then what we can say, this is known as Pythagorean triplet. Okay, this is known as Pythagorean triplet. And suppose we are not getting like that, दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा, we not got here what, greater number square is not equal to sum of squares of remaining 2 numbers, hence it is not a Pythagorean triplet. बाद में अगर एक नंबर दिया था 8 इधर, तो बाकी के नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं ये मैंने तुमको बताया। ओके, एग्जाम्पल में पहले वो नंबर कॉपी करना है एज इट इज़, बाद में 2m से कंपेयर करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और पहला नंबर फाइंड आउट करने के लिए m स्क्वायर माइनस 2 और दूसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए m स्क्वायर प्लस 2। दिया हुआ नंबर और 2 नंबर जो हमने फाइंड आउट किए हैं उसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यू अंडरस्टैंड। उसके बाद और एक एग्जाम्पल मैंने तुम्हें सॉल्व करके दिखाया इधर। ओके, दिया हुआ स्मॉलेस्ट नंबर था 12 और 2 नंबर हमें मिले कौन कौन से, 35 एंड 37। तो 12, 35 and 37, this is known as the Pythagorean triplet. Do you understand? I hope so you are getting idea about it. Remaining points we will continue in the next lecture. Thank you.